think, you become. So you have to focus only on your dream or goal because it helps you a lot to become successful in life. For becoming successful in life, first you have to know about mind management. Have you ever listened about mind management? If you heard, if you heard, then what is it? Dear students, what is your understanding about mind management? How would you define mind management? Can I? Yes, please answer. माइंड मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जो कि हमें अपने माइंड को रिलैक्सफुल और स्ट्रेस फ्री बनाता है। जैसे कि अगर माइंड मैनेजमेंट में हमारा माइंडफुलनेस भी इंक्लूड होता है। Very good. You've included, said that mind management means mindfulness where you can control your mind and feel stress free. Very good. Anyone else? Okay. Over to you, Anamika. Mind management is the act and skill of controlling the activities of the mind in order to make decisions and achieve success in life. Unless we control or manage our mind, it is difficult to achieve success and peace. Psychology says every interest is first born in the mind as a seed, then it continues to grow. You must make up your mind, otherwise, life will go waste. Every moment, your thoughts will shift from here to there. Because the mind has no shape, you can do whatever you want to do with it. The problem is that your mind doesn't take instructions from you, it takes its own shape. So, have you learned that how you can give shape to your mind? Let's try to understand how can we manage our mind to become successful in life. First, vision and goal setting. You have to make a clear goal and having a clarity of vision about your dream so you can set your clear intention. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप टीवी पर किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखते हैं तो आपके मन में आता है कि हाँ मैं इन्हीं का पैशन फॉलो करूंगी। जैसे कि आपने कभी किसी बिजनेस वुमेन को देखा तो आपके मन में आया कि हाँ मैं भी बिजनेस वुमेन ही बनूंगी। नेक्स्ट डे आपने किसी फेमस स्पोर्ट पर्सन को देखा तो आपके मन में आया कि नहीं नहीं मुझे स्पोर्ट पर्सन बनना है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे हमारे माइंड को कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलती और वो खुद को उस सपने के लिए रेडी नहीं कर पाता। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ you have to make your in mindset, then definitely your mind do all those things which is required to achieve your goal. It all depends how we think. Taking stock. You need to take stock of where you are and look at what's stopping you or inhibiting you achieving your goals. Once you recognize them, you can deal with them. क्या आप सबको पता है आपके गोल्स और आपके बीच में क्या आ रहा है? मुझसे शेयर करना चाहेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है आपके गोल्स तक का या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रोकती है? किसी चीज का तो फियर होगा ही। Anyone? Comfort zone. Question is to you. Comfort zone. Comfort zone. You are scared of coming out of the comfort zone. Very good. Anybody else? Hi.
Hi, may I? Yes. The question was, what is the mind management? So I want to say, first of all, about mind management. Mind management is essentially is managing your emotions, your perceptions about people, thinkings, and process. If you're thinking like, for example, your mind is like you are thinking about any people, any personality, and you are thinking that I should be like that, and I should be like that person, but you are not capable for that. For those time you have to maintain your mind, and you have to focus your mind that what should you do, and is what kind of mind you're capable for that. So that is the you have to manage yourself. That is the mind management. And what was your next question? The question is, what is your biggest fear of achieving your goals? The biggest fear is I can say about me, it's laziness. Oh, Okay. again same means comfort zone. But क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या No, ये it's इतनी not the biggest. We can, but it's our habit, so we cannot. We you have think to. you can't change, but I think you will if you try. Of course, yes. Anyone else? ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे लाइफ में. मैं टीचर से ही पूछना चाहूंगी जितने भी हैं यहाँ, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें लगा हो कि गोल्स अचीव करने में रह गया, काश मैंने ये चीज ना सोची होती, उस वक्त ये स्टेप उठा लिया होता. कुछ भी, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे. Okay, I'm sharing my experience. For example, I was in 12th class. After that, I listen to motivational videos about Vivek Bindra. Vivek Bindra say that you can do, and you have to do like this and that. And suddenly, I think, okay, they said don't do job, start your own business, don't do like that, don't do like this, whatever you want to think you can do. So I start without thinking. I don't have any knowledge of that field. So I invest my saving money, and I take money from my family, and I invest my money and that business, which is I don't have knowledge, I don't have anything, and I blindly trust that person, and I invest my money and I lost that. So I learned that we should not do anything without knowing or without knowledge. Okay, thank you for your sharing. And I would like other students also to share. Tanya, Tanishka, please share your thoughts. And other Ma'am, fear of judgment. Very good point. Fear of judgment. You But don't want others to make pinpoint your Santosh Ashiya ma'am has said decision making ability. That's also very true. Sometimes we feel that we'll not be able to take the right decision. That's a good point. Anyone else? मैम फेलियर का भी डर रहता है कि फेलियर अगर फेस करना पड़ गया. Very true. मैम Uh, कंफ्यूजन. Tanishka, we couldn't hear you. Please repeat. मैम कंफ्यूजन. Confusion. You're not sure about what is your action goal. Action and the goal. Right. मैम किसी चीज को खोने का भी डर रहता है, कभी इस चीज को करते हुए कुछ और ना रह जाए. Okay. That's also a fear of coming out of the comfort zone. Risk लेने से डर लगता है. okay, can I say something? Yes, sure. हम सबको जहाँ अभी तो जितने पॉइंट्स मिले उसमें बेसिकली ये आया कि हमें कुछ हमारी सोच में है और कुछ डर है. सोच में ही तो डर है. बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो कई लोग डरते हैं ना कि जजमेंट से,
जो लोग आज आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में न जाने क्या सोचेंगे, ताने देंगे, अगर कल आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो वही आपकी तारीफें और मिसालें देंगे। तो आई थॉट कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या जजमेंट होगा, ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये कर लूं तो मैं क्या कर सकती हूँ और कैसे इन जजमेंट्स को बदल सकती हूँ अपने लिए। और कंफर्ट जोन, तो उसका तो एक ही है कि खुद को इतना रेडी करो कि ऐसा आप क्यों सोचते हो कि ठीक है मैं कंफर्ट जोन से निकल नहीं सकती, क्यों नहीं निकल सकते अगर आप ट्राई करो। और Okay. So our third point is empowering affirmation. You have to replace the negative limiting thoughts about your goal with positive empowering ones. For this, you can write your negative thoughts about your goal on a sheet and read them out. And then tell yourself that these are only thoughts. These are not any type of universal truth. And take them out with your hard work. time, it gives you positive vibes, and it will increase your self confidence, and most important thing, it will make you smile. Then you will not say why me, I hope you will say just try me. जैसा कि अभी सबने कहा कि कई चीजों से डर लगता है, तो आप उस मकाम पे खुद को सोचो जिस मकाम पे आप अपने आप को देखना चाहते हो। जब आप ये सोचोगे तो उससे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, जैसे पॉजिटिव वाइब्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अपर होगा। क्या कभी आपने ये फीलिंग फील की है? Think of some examples from your life. जब आप किया हो, please. क्या कभी आप सबने अपने आप को उस पोजीशन पर फील किया है जिस पोजीशन पर आप अपने आप को देखना चाहते हो फ्यूचर में? एनी गोल, क्या आपने ऐसा इमेजिन किया है? Yes, ma'am. Can I? Yes. मैम एक्चुअली जब मेरा न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ सो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, बट मैंने फिर ये थिंक किया कि मुझे हाँ साइंस लेनी है, देन उसके आगे मेरा ये एम है कि मुझे सर्जन डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है। सो उस टाइम पे मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं उस प्लेस पे होंगी, अगर मैंने आज स्टेप नहीं लिया ये तो फिर मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाऊंगी। Very good. Sweetie, I do remember you were sent me a message कि मैम मुझे किसी और स्कूल में भेज दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड मैंने सिर्फ आपको कहा था कि गिव सम टाइम, एंड आज आपसे ये सुनकर कि यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट, इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि यू हैव ट्राइड टू come out of the comfort zone and adjusted to the new environment. Good. Yes. Anyone else? मैम कैन आई? Sure. मैम मैंने भी अपने आप को एक बार इमेजिन किया था मैम, जब मेरे एक बार प्री बोर्ड में काफी कम नंबर आए थे मैथ्स में, तो मैंने एक बार को सोचा भी था कि मैं अपना गोल छोड़ दूं, बट उसके बाद मैंने अपने आप को सही में इमेजिन किया था कि जहाँ पे मुझे जो मेरा गोल है वहाँ पे, तो उसके बाद फिर मैंने मेहनत करी अपनी। Very good. So you decided on your own that you have to overcome your own shortcomings. Anyone else would like to share? I think we can take some sharing from our teachers also. Anyone would like to share their experience of such a situation? Okay, I think they're still thinking. Over to you, presenters. ओके, मैं उन्हें टाइम देती हूँ जो सोच रहे हैं। मैं जब तक अपना एग्जांपल क्या मैं बताऊं? Sure, sure. ये फिलहाल की बात है, जब मुझे स्ट्रीम चूज करना था तो मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि
आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो। इवन मेरी टीचर थी ट्यूशन की, ने मुझे समझाया कि डिफिकल्ट है, ऐसा ना हो कि तुम कंफ्यूज रह जाओ, कर ना पाओ, बहुत सी चीजें समझाई। और 2 मिनट के लिए मेरे मन में भी आ गया था कि मैं लूं या ना लूं, जैसा कि मैंने मनीषा मैम से बात भी की थी। तो फिर मुझे मनीषा मैम की बात एक याद आई। उन्होंने मुझे कहा था, निशाना चांद पर रखो, चूक गया तो तारों पर तो लगेगा। और लिटरली मेरे दिमाग में यही चीज आई जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने बस अपने दिमाग में जो था सब हटाया कि ठीक है, मुझे डॉक्टर बनना है, अब मैंने सोच लिया है, अब चाहे जो भी हो, मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बन गई तो फीलिंग क्या होगी, कितना प्राउड फील करूंगी। और जितने लोग मुझे अभी समझा रहे कि तुम नहीं कर सकती या डिमोटिवेट कर रहे हैं जो, तो मैं उनको रिप्लाई दे सकूंगी इसी तरीके से। मैं उनके लिए नहीं कह रही जिन्होंने मुझे समझाया, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने मुझे क्लियरली कह दिया कि तुम कर ही नहीं सकती। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहूंगी कि हर स्टेज पे यू विल फाइंड एवरीवन हु विल डिस्करेज यू, लेकिन वो इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे तो इट विल नॉट बी टू डिफिकल्ट। एंड जैसे विजुअलाइजिंग कहा है कि विजुअलाइज योर एम कि आप 10 इयर्स के बाद या 5 इयर्स के बाद कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, वो भी एक बहुत अच्छा ड्राइविंग फोर्स होता है। बिकॉज यू हैव अ अल्टीमेट एम कि मुझे ये पाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। वेरी गुड शेयरिंग। यस, ओवर टू यू बेटा। Have you ever got affected by mentality of the society? क्या कभी आप अफेक्टेड हुए हैं सोसाइटी की सोच से? ऐसा तो हो। सेम क्वेश्चन, लोग Yes, क्या कहेंगे। यस। yes, sometime, but we should not think about people, what people say, what people think. But yes, in our area, in our culture, we have to think about that. But we should not think about people, about anyone. What should they are thinking about me? What they are saying? Because they never. If you feel good, you can. If you will be in trouble, nobody will help you. And that time, like you are in well settled, you are your environment are good, you are doing well. All people think they are doing like they have haram ka paisa, they have like they are doing wrong work, so they are getting money. So every people have different thoughts, every people have different mind. So don't care what people think, what people say, do what you want to be. Yes, थैंक यू totally. फॉर द शेयरिंग। Anybody else want to say something about? Okay, as we Can I? all, yes, sure. एक्चुअली जब मेरे 10th में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, सो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ऐसा है कि हर एक को ना दूसरे के मार्क्स से अफेक्शन बहुत होती है, और देन फिर वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे उसके तो इतने मार्क्स आए थे, ये वो। तो इस वक्त में बहुत ज्यादा डर लगा था, और फिर भी कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा, सो जो उस टाइम पे मुझे अफेक्शन हुआ था बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये सब बातें कही थी तो मैंने यहाँ तक कि किसी का कॉल तक नहीं उठाया था, और मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। Okay, anybody else? Okay, as we जस्ट all, जस्ट मिनट बेटा, आई थिंक अगर आप सोचो आपके पेरेंट्स ने भी कई बार आपको रोका होगा कि लोग क्या कहेंगे। कैन यू थिंक ऑफ दोस इंसिडेंट्स कि उन्होंने कुछ करने से रोका हो कि लोग क्या कहेंगे, कि हमारे समाज में तो ऐसा नहीं होता, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। Anyone who wants to share about this? Yes, it's all time happen in our society.
Okay. Any particular example anybody would like to give? I can say, I can give example not about me, about people, anyone, one boy, one boy who is like any other lower caste, and one person who is like upper caste. So he was like well educated. He has more knowledge, more than like he had like upper caste people. So still people think he is like a chhoot, or like that kind of thing. So they ignored, and they respect those people who like upper caste or something. So it's a mentality in our society we should change. Okay, I agree with what you are saying. Anybody else would like to share? Ma'am, I want to ask a question. You said we Okay. have changed our society mentality. Did you had change your mentality? क्या आपने उस इंसान को ऐसा तो नहीं समझा ना कि वो अनटचेबल No, no, टचेबल no, है? no, no, never, never. क्या आपने अपने फ्रेंड्स और बाकी सबको ये समझाया कि ऐसा मत करो? क्योंकि अगर ये आपके सामने हुआ तो इसे रोकना भी तो आपका ही काम है. ऑल टाइम हम लोग समझाते हैं, जो हमसे हो सकता है, जो हम कह सकते हैं, जो हम समझा सकते हैं, तो अपने लेवल पे हम तो कर सकते हैं। बट जो सोसाइटी है उनको धीरे धीरे, या उनकी सोच को क्या हो सकता है उसके लिए तो स्टेप हम ही उठा सकते हैं। हम तो अपने लेवल पे कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड. एनीबॉडी एल्स? ऐसा तो हुआ नहीं है, खासकर अभी तो ज्यादातर गर्ल्स ने ज्वाइन किया है और गर्ल्स को ज्यादा रोका जाता है ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे. तो आई होप कि आप सबके पास एक ना एक एग्जांपल तो होगा, शायद आपको याद ना आए, आ रहा होगा अभी, बट प्लीज ट्राई करो. कभी आपके ड्रेसअप के ऊपर, कभी फोन चलाने के ऊपर कि इतना किसी के सामने फोन मत चलाओ, क्या सोचेंगे, कुछ भी, हंसने के ऊपर. Can I? बताओ. Yes, sure. मतलब मेरा जब भी मैं स्कूल जाती थी तो मेरा जब भी सारा काम ऐसे कंप्लीट होता था तो और फिर मैं जब घर आती थी तो मैं मतलब पार्क वगैरह से भी जाती थी और घूमती सब रहती थी. तो लोगों को ये रहता था कि क्वेश्चन रहता था कि ये तो एक कुछ पढ़ती वढ़ती होगी नहीं बिल्कुल भी और ये सिर्फ इधर उधर घूमती रहती है जिसके कुछ अच्छे मार्क्स नहीं. और मतलब मेरे मार्क्स आते थे तो सब जजमेंट ये रहता था कि इसका मतलब चीटिंग करके ही आया होगा. This was possible only till before 10th. 10th के बोर्ड के एग्जाम्स ने सब प्रूव कर दिया कि आपकी एबिलिटी कितनी है. So you don't need to worry about that. What about others? Anybody else would like to share? Jaya, Jyoti, मैम आपने ही मुझे एक एग्जांपल दे दिया अभी. क्या बेटा बोलो. जैसे कि अभी मैम ने कहा कि हमने प्रूव कर दिया 10 के मार्क्स जब आए कि ठीक है हम इस काबिल हैं. एक मेंटेलिटी ये भी बनी हुई है हमारी सोसाइटी में कि अगर 10th में किसी बच्चे के मार्क्स जिनके अच्छे आ रहे हैं या फिर वैसे भी जिसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं वही बच्चा अच्छा है, बाकी कोई कुछ कर ही नहीं सकता. I agree with what you're saying, beta. But if you remember, मैंने भी आपको ये कहा था, हमेशा कहती रही हूँ कि one मैम exam cannot prove your ability. I was just answering to Fruity that anyone who was pointing fingers to her, she has proved to them that she is capable of getting good marks. यस मैम, But आई I एम do नॉट agree. क्वेश्चनिंग यू. ओके. Let's go further. As we all know that there are many types of saying in our society about different things, like girls are only made for 9 to 5 jobs. There is nothing in art stream. Science students are brilliant. Commerce students are hardworking. But humanities students are not so good in studies. Or if you choose humanities as stream, the reason could be that your grades are not good. Girls cannot do best in games. Sometimes this saying comes between you and your goals. At that time, it was like your exam. That how you react to these sayings or society.
You have to make up your mind for these things already because we all know लोगों का काम है कहना. कुछ तो लोग कहेंगे. People will say a lot of things to demotivate you, but you have to take this as a challenge and fight for your success till you get succeed, because only then you can lead change in your society. Look at this picture. There was a story behind the picture. Is anybody know? If yes, can you please tell us something about the story? I think everybody Anybody knows know? this story. Do you recall the story? Okay, you tell. ओके आई विल टेल यू द होल स्टोरी. एक गांव था, वहां पर 6 ब्लाइंड लोग रहते थे. एक बार गांव में एक हाथी आया, तो गांव के लोगों ने उन लोगों को बताया कि गांव में हाथी आया है. उन लोगों ने सोचा कि हम हाथी को देख तो नहीं सकते, चलो उसे टच करके ही देखते हैं कि वो कैसा दिखता होगा. तो हाथी एक पिलर की तरह है, पहले इंसान ने बोला, जिसने उसका लेग टच करा था. हाथी एक रोप की तरह है, दूसरे इंसान ने बोला, जिसने उसकी टेल टच करी थी. हाथी एक बॉल की तरह है, तीसरे इंसान ने बोला, जिसने उसकी बेली टच करी थी. बाकी लोगों ने भी ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग अलग पार्ट्स को टच करके अलग अलग बातें बोली. फिर वो सभी लोग आपस में लड़ने लगे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ. तभी वहां से एक समझदार इंसान जा रहा था. उसने उन लोगों से पूछा कि क्या बात है. उन लोगों ने उसे सारी बात बताई. तो उसने उन्हें बोला, तुम सभी लोग सही हो, बस फर्क यही है कि तुम सभी ने हाथी को अलग अलग नजरिए से देखा है. This story is all about different people have different point of view for doing the same thing. If we make over our mind perfectly, we will started to find happiness in small things. Do you know psychologists say 99% happiness depends on us and 10% depends on a particular thing. इसका मतलब कि 90% ये हम पर डिपेंड होता है हैप्पीनेस, कि हम कब खुश रहें. खुश होना हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो हमारी चॉइस है. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज को देखने के 2 नजरिए भी. So not always focus on the negative side of a thing, to its positive also. Don't always be sad for what you don't have. Be happy for what you have is enough for you. Don't complain God that I don't have the expensive thing clothes. Thank to God that you give me clothes and food to eat. If your parents or teacher ever scold you, don't think that they are your enemy or they don't want your good. Just sit and listen to their point of view and explain them yours. Of course, they will listen to your point of view also, because conversation is very much important in any type of relationship. अब कन्वर्सेशन की वैल्यू तो हम सब लॉकडाउन में समझ चुके हैं. There are some little things for which we are taking stress and tension, but they can solve easily because every problem has its solution. The thing was that you have to think about it. If you started to find happiness in small things, half of your tension will finish. Do you know our mind is like money? Can anybody wants to tell me that आप क्या समझे इस चीज से कि हमारे माइंड किस तरीके से मनी से हम कंपेयर कर सकते हैं? This is a very unusual comparison. Can you just imagine how our participant is comparing mind with money? Any guesses? Yes, may I? Sure. So some people expend money in clubs, in holiday, in other place to find happiness. Some people find happiness, like for example, anyone is
लाइक रिक्शा वाला कोई जा रहा है, तो स्कूटी से अपने उसको अगर आपने हेल्प कर दिया चढ़ाई पे, वो अगर ऊपर पहुंचेगा आपकी मदद से, तो उस टाइम भी आपको हैप्पीनेस मिलता है। तो इससे भी आप हैप्पी हो सकते हैं और पैसे से भी हैप्पी हो सकते हैं। तो दोनों अलग अलग लोगों की थिंकिंग है, अलग अलग हैप्पीनेस का है एक। Good. Yes, Jyotsna ma'am, would you like to share? Yes, ma'am. I think like for money, like for buying anything, we need money. For doing any work, any action or anything, we use our mind. I think that's why they have compared our mind is like money. I think you're right. Anyone else? If I am asked, I will say that my mind is as precious as my money. So it's important for me. Anyone else would like to say? Okay, over to you. Our most precious God gift, mind. जब हम मनी को यूज करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि हम हमेशा मनी को उस जगह यूज करते हैं जहां प्रॉफिट और लॉस देकर करते हैं, राइट? तो हम अपने माइंड को प्रेजेंट, फ्यूचर एंड नॉट नेदर प्रेजेंट नॉट फ्यूचर, इन जगहों पे यूज करनी चाहिए। वी आर यूजिंग आवर माइंड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, but mostly we are using our mind in neither present nor future. अब आपको क्या लगता है, प्रेजेंट के लिए अपने माइंड को हम कैसे यूज करते हैं? जैसे अभी आपको सुन के और yes, what about others? What is your perception? Okay, you give some an example, then I think others will able to think. जब हम अपने पेरेंट्स से कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो हम अपनी माइंड की थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाते हैं कि ठीक है, हम इस लेवल तक अब सोच सकते हैं। कन्वर्सेशन करके, कुछ नया सीख कर, कुछ नया Okay. देख कर। Kirti ma'am wants to share. Yes, please, ma'am. We spend our time on thinking about our past mistakes or past lessons. Then we are spending our time on past. And when we are doing some activities currently, we are focusing on that thing only. Then that is something that we are investing in the present. And when we are procrastinating things or thinking about future, daydreaming, कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, then we are spending time on future. So it depends on us whether we should focus on present or concentrate on past or future only. But it would be wiser if we concentrate on our present, live in the present. And because mind faculties are very precious and we should spend them like we spend every penny very wisely. Similarly, we should spend every faculty of mind or every moment of life very wisely. Yes. Thank you for the valuable Example. examples and words you've shared. Anyone else? Okay. For future, अब आपको क्या लगता है कि हम अपने माइंड को फ्यूचर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे करते हैं? Can I? Yes, sure, please. हम जैसे कि काफी सारे फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं कि घर खरीदना है, ये खरीदना है, या फिर करियर्स बनाते हैं और उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं अपने माइंड को। ओके, बट जब हम ये करते हैं तो उसके लिए हमें नीड होती है मनी की, राइट? तो हम माइंड को कैसे यूज करते हैं? क्योंकि हमें जो मनी तक पहुंचने का रास्ता है हमारा करियर तक पहुंचने के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई के लिए माइंड का यूज होगा। एग्जैक्टली, जैसे हम अभी एजुकेशन कर रहे हैं
हम इस पे क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इतनी सेंड दे रहे हैं, ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आए। अपने माइंड को इसलिए तो यूज कर रहे हैं। एनीबडी एल्स? ओके, अब ये आई होप कि ये वाला एग्जांपल तो सबको पता होगा, नेदर प्रेजेंट नॉर फ्यूचर। वी हैव टू spend our mind on present and for future, but we are mostly using our mind for neither present and not future. तो आपको कहाँ लगता है? In other words, how are we wasting our Yes, yes. mind? Wasting the use of our mind. बताइए। जब हम ज्यादा फोन चलाते हैं और उसमें अपना माइंड को यूज करते रहते हैं। ओके। या फिर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचने में अपना टाइम निकालते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके। मैम काफी बार नेगेटिव थिंकिंग में भी हम अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच पाते। वेरी गुड। एनीवन एल्स? जूनी ने फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किया। जूनी, वुड यू लाइक टू शेयर? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। और कोई? ओके, ओवर टू यू प्रेजेंटर्स। तो हम अपने माइंड को कई तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। कई बार सोकर, अब सोकर तो हमारे माइंड को पीस मिलता है, फिर भी अगर जब हम ज्यादा सोते हैं तो उससे भी हमारे माइंड का वेस्टेज ही तो है। और जब जैसे सबने कहा नेगेटिव थिंकिंग में, हम ऐसा होता होगा सबके साथ कि हम मम्मी ने कोई काम कहा कि नहीं मम्मी अभी इतने देर में तो मैं ये कर ही नहीं सकती, मुझे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। और मम्मी कहती हैं कि जितने देर में नाना कर रही है ना उतने देर में अभी तक हो भी जाता। राइट? तो हमें ये सोचने की जगह कि नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कैसे करें। वेरी गुड पॉइंट। तो क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने बोला हो कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, पर फिर किसी के भी मोटिवेट करने से या कुछ सोचने से कि ठीक है ट्राई तो करके देख ही लेती और वो चीज हो गई हो या ना हुई हो, तो भी बता सकते हैं? प्लीज से समथिंग। एनीवन? टीचर्स से भी है कि उनका कुछ भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं वो। आई थिंक कई बार हम लोग ऐसा कह देते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, और लेकिन जब ट्राई करते हैं तो हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स देने हैं। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? कैन आई? यस। वैसे तो मेरी कॉपी में जो हैंड राइटिंग है वो काफी घटिया है, तो उस हिसाब से मतलब मुझे लगता था कि मेरे से कैलीग्राफी हो नहीं सकती। बट जब एक दो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो उसके बाद जब मैंने ट्राई किया तो मेरी कैलीग्राफी काफी अच्छी। वेरी गुड। यस डॉली, वुड यू लाइक टू शेयर? यस मैम। प्लीज। समटाइम्स मेरी मम्मी मुझे कोई काम करने के लिए कहती है, किचन का काम या कोई भी काम, तो मुझे मुझे मतलब करने का मन नहीं होता, तो मैं ये बोल देती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता। तो मम्मी मुझे ज्यादा कहती है कि नहीं एक बार करके तो देख, फिर जब करके देखते तो हो जाता है। ओके, ये भी हमारा एक माइंडसेट है कि हम कोई भी नया काम करने से पहले एक नेगेटिव थॉट ले आते हैं कि हमसे होगा ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट। और मेरे साथ ये होता है कि जो काम मैं बोलूंगी मुझसे नहीं होगा, मेरी मम्मी हमेशा वही कराती हैं। बिकॉज आपकी मदर चाहती हैं कि आप अपनी एबिलिटीज की पहचान करो कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो जितना आप सोचते हो।
Yes, ma'am. Can I? Yes, Sure. please. मैम व्हेन इन लॉकडाउन आई गो टू विलेज, तो फिर मुझे साइकिलिंग नहीं आता था उस टाइम, और ना ही मुझे इंटरेस्ट आता था सीखने में। बट मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करती थी कि तुम्हें साइकिल चलाना सीखना है। बट मैं कहती थी मम्मी को कि मैं साइकिल सीख कर क्या करूंगी, जब दिल्ली जाकर साइकिल तो कहीं यूज नहीं करना है, नहीं चलाना है। बट मम्मी ने बहुत ज्यादा मुझे फोर्स किया, और उसके बाद फिर मैंने भी ट्राई किया। मैम चोट तो बहुत लगा, बट फाइनली मैं सीख गई। उसके बाद बहुत मतलब उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है, और फील भी आता है कि हाँ, पे बोल सकती हूँ कि मुझे भी साइकिल चलाना आता है। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने सीखा था, मुझे था कि साइकिल सीख कर करेंगे क्या। या But कई beta, बार हमें लगता है कि हम these are things which may help you anytime in your life. So you should always try to learn anything new you can learn. If I share मैम my own experience, मैंने भी when I was in school try किया था। मैं 3-4 बार गिरी, बहुत चोट लगी, मैंने सीखा ही नहीं। और मैम इसी वजह से I'm मैं very भी मम्मा को ashamed to मना admit कि करती मुझे थी। I'm very ashamed to admit कि मुझे आज तक साइकिलिंग नहीं आती है। मैम मुझे भी फर्स्ट टाइम जब ट्राई किया था तो बहुत ज्यादा चोट लग गया था, इस वजह से मैं भी मम्मा को मना करती थी कि मैं साइकिल नहीं सीखूंगी। But you tried again and succeeded. That is your success. Very good. Over to you, participants. It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you if you allow it. Depend on you that which type of thought you put or store in your mind. But always remember your thinking, your thought, all will refer in your behavior. आप लोगों ने यह बात तो सुनी ही होगी कि दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ, बट द ट्रुथ इज दैट ये दोनों ही बातें हमारे माइंड की ही होती हैं। हमारे माइंड हर तरीके की बातें सुनता है, हर तरीके की बातें जानता है, अच्छी भी बुरी भी। जब सजेशन देने की बात आती है तो हमारा माइंड हमें दो प्रकार के सजेशन देता है, एक अच्छी और एक बुरी। दैट डिपेंड ऑन अस कि हम उसमें से अच्छी सजेशन चूज करते हैं या बुरी। जैसे कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस होते हैं, कितने डिफरेंस है दोनों एक दूसरे से? मैं यस प्लीज। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि अगर कोई उदास है तो हम उसको उसके लिए हम उदास होते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो भी उदास है तो हम उसको एक तरीके से दिलासा दे रहे होते हैं। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, हम उसको उसकी पोजीशन पे रख के देखते हैं कि जैसे उसकी सिचुएशन है, हम ये सोचते हैं कि अगर शायद हमारी ऐसी सिचुएशन होती तो हम क्या करते। यस, जैसे दिल और दिमाग की बातें एक होती हैं, वैसे ही सिंपैथी और एम्पैथी एक नहीं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि कई बार हमारी सोसाइटी में ये है कि हम बोलते हैं कि ये तो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, राइट? बट हमें है ना ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए, और किसी के बारे में सिंपैथी से बेटर है कि आप एम्पैथी फील करो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के पोजीशन पे रख के देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि ओके, कि इसके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, इसे किस सपोर्ट की जरूरत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको जरूरत हो एम्पैथी की और आपको सिंपैथी मिल रही हो, या दोनों में से कोई चीज ना मिल रही हो? एनीवन जिसको ऐसे कहा जाता है कि ठीक है, आपको जरूरत हो सपोर्ट की, एम्पैथी की, कि कोई तो हो जो समझे मेरी बात को, मेरे अपने थॉट्स को मेरी जगह रखे, समझे। Yes, nowadays in our society, all people give you sympathy, but no will give you empathy. नाउ इन आवर सोसाइटी कोई भी आजकल तो कोई सच्ची सिंपैथी भी नहीं देता है। Mostly people can. Yes, I but know. Empathy, nobody except your family or your mom, dad,
sisters, brothers. Okay. Thank you for sharing. Anyone else would like to share? ओके, शायद कोई नहीं करना चाहता, बट क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे हम सब ने अभी कहा जजमेंट्स, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सोसाइटी क्या कहेगी, अगर वही सोसाइटी ये सोचे हमारी जगह होकर, ओके कि नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी हमारे बारे में एम्पैथी ही रखनी चाहिए सिंपैथी की जगह? We can only think, but it's only in mind. ओके, अगर मेरा तो एक ही कहना है कि अगर हमको बदलना है नजारा तो बदलो नजरिया। आप खुद से स्टार्ट करो, खुद को चेंज करो, जरूर कोई ना कोई स्टार्टिंग आपसे होगी, तो आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई आपसे जरूर सीखेगा, और धीरे धीरे शायद एक इंसान से दो, दो से चार, चार से पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरी सिटी और पूरा वर्ल्ड, ये भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि एक इंसान कुछ नहीं बदल सकता, अपनी सोच को बदलो, तब शायद हम क्या, पूरी दुनिया ही बदल जाए। Perfectly said. जैसे महात्मा गांधी said, be the change you want to see. So charity begins at home. We have to change ourselves first before expecting from others. Very well said. Can we go further? Next slide, please. अनामिका, Anamika, next slide. शायद वॉल्यूम नहीं जा रही। Yes, Feedback. there. Thanks a lot for giving your precious time here. This made the session more amazing and interesting. Now, please give your valuable feedback that we can improve more. Thank you. Thanks a lot. Very good session. Very interactive. And we had some new guests today, but I think they have left by now. Now we are looking for feedback. I think we It's can. awesome, very nice. Yes, I can say only this. Thank you. Kirti ma'am, would you like to give your feedback? Yes, ma'am. Very nice session. Very nice interaction this time. Special thumbs up for Anamika and Nazneen. Are they presenting from the same venue? No, they're at different venues. They're at their homes. But very good Okay. coordination. Yeah, so very well coordinated. So that's why I was asking. Very nice. And one suggestion I can give, that you can include some online polls in between, the presenters can include, so that you can get the views of different students and teachers. Like you can paste the link in the chat box. Some online apps are there which allow online polls, and we can just click on that link and we can say yes or no. Some simple questions can be asked in this form. Thank you very much, Kirti ma'am. And I think we will do that by the next session. This time we had shifted to Zoom, and we are also recording. So this was a new beginning for us. And I think we'll do that next week. Santosh ma'am, can we have your feedback? Yes, as usual, wonderful session. Anamika, very well presented. And last, what you share, be the change. I agree with you. Yes, I only can do. So it's your willpower only. You can bring any change. It will take time, but it will do. That's all. Thank you. Thank you, Santosh ma'am. Perfectly said. Jyoti ma'am, we would like you to share. Jyoti And I ma'am. will add one more thing. Sure. Your session is the biggest change, and it's your only willpower.
You are bringing that change. Your students are doing very well. मेरे भी लाइफ का एक हिस्सा बन गए ये सेशंस. आई एम ऑन हॉलीडे बट आई डिडंट वांट टू ब्रेक द चेन. I know. Okay, Jyoti ma'am, please give your views. Jyoti ma'am, are you saying something? We are not able to hear you. I think no. Josna ma'am, can we have your views? Jyoti ma'am, I think was speaking, but net issue The maybe. network issues. Okay, we'll come back to Jyoti ma'am. Josna ma'am also has also left. No, Okay, ma'am, Jyoti, I'm can we here. hear you? Yes, ma'am. Am I Jyoti audible? ma'am and Jyoti ma'am, any one of you would like to share? Yes, ma'am. First of all, congratulations. I think this is the first session after the students have come in the class 11. So big congratulations. And major change हुआ है Google Meet से Zoom पर आया and then sessions record भी हो रहे हैं. So biggest congratulations to all the students and to the guided teachers, to ma'am also. I think the one session बहुत अच्छा था, very well coordinated. और पीपीटी बहुत अच्छी थी, एग्जाम्पल्स, टॉपिक बहुत कैची था और वेरी वेल प्रेजेंटेड. वॉइस मॉड्यूलेशन और जो शेयरिंग्स आपने ली हैं और शेयरिंग्स पे जो फर्दर आपने अपना फीडबैक दिया है वो भी बहुत अच्छा था. The one thing I just want to share my experience of मतलब being a positive change. Recently, today the incident happened. I think one of my cousin have borrowed the pressing machine from us and broken it. And my sister was very angry at her. He has broken our machine and I will never give her. And I say, when we can't answer it, तो क्यों उसको में फोन करके गुस्सा करना है, हटना है, चिल डाउन, कूल डाउन ठीक करा लेंगे. So this is the change, the thing I in that situation. I think this change happened to me, things in me due to this session. क्योंकि जब हम इतना डिस्कस करते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अपने अंदर लगा है इस सेशन के थ्रू. और जैसा मनीषा मैम ने भी बोला था कि मुझे वो लाइन अच्छी लगी जो बच्चे ने शेयर करी कि हमेशा जो है वो चांद पर रखो, तारों तक तो लगेगा ही. सो ऑब्वियसली हमें अपने गोल्स हाई रखने चाहिए और अपने माइंड को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहिए. और सेक्शन बहुत अच्छा था. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Any other person would like to share? Teachers, students, anyone? Feedback दीजिए please. Can I? Yes, Fruity. Both of them and Nazmi and you told that she was not being her demo was not was good, but today's it is improved. Thank you, Fruity. Very well said. इससे पहले कि मैं इन दोनों बच्चों से पूछूं, let me tell you something. परसों तक इनका टॉपिक भी ठीक से डिसाइड नहीं हो पाया था और but I was very confident that they will be successful on the day of presentation. So this was my total confidence in them and I didn't worry at all. मुझे पता था they will overcome all their problems. So all hats off to these two girls. Now I would want their sharing about their experience. Anamika and Nazmeen, please share. Anamika, Yes, ma'am. share your experience.
मैम मैं हर बारी सेशन से कुछ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब सेशन किया था तब भी हमें ऐसी बहुत ज्यादा लेट हुआ था, हम लोगों ने एक ही दिन के अंदर ऐसी जल्दी में बहुत ही जल्दी में रेडी किया था, बट तब भी हमारा सेशन बहुत ही अच्छा गया था। सेकेंड टाइम जब मैंने सेशन किया था तो नाजमीन, तब भी मुझे नाजमीन के साथ करना था, बट नाजमीन को किसी रीजन की वजह से वो उसका फोन वगैरह नहीं लग रहा था, तो तब भी मुझे अकेले सेशन करना पड़ा। तब भी मैंने बहुत ही जल्दी में, मतलब मैम हर बार मुझे जल्दी में ही करना पड़ता है, मैं लास्ट के 3 डे में ही प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। तो तुम बट जब एक्सपर्ट हो आप, गई फिर तो। यस मैम, वेरी वेल, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, voice modulation was very good and very well, the kind of responses you gave, that was also commendable. Very थैंक यू good. मैम। Nazneen, मेरे लिए तो ये पूरा एक हॉरर मूवी की तरह था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब मेरे टॉपिक्स एकदम ऐसा आपने कहा था ना कि अभी नहीं ये नहीं बैठ रहा, सही से नहीं हो रहा, तो मैं बहुत डर गई थी कि मनीष मैम ने इतना बिलीव करके दिया है, मैंने इतना टाइम भी मांगा तब भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद भी मैं लगी रही और वो पीपीटी मैंने नेक्स्ट पीपीटी भी बनाई दूसरी टॉपिक पे, वो भी अच्छी नहीं बनी, वो मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया था। फिर उसने कनक ने सजेस्ट किया कि अनामिका के साथ करो, तुम दोनों बेटर करती हो। तो फर्स्ट थैंकफुल टू मनीषा मैम, थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना बिलीव किया मुझ पर। एंड सेकंड थैंक्स अनामिका, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पीपीटी अनामिका के बिना कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और उसने मेरा बहुत हेल्प किया। और अभी जो मुझे ये फीडबैक मिल रहे हैं, बस ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्रॉफी मिल गई। very Thanks. good to hear that. Very good to hear that. And this is also a big achievement that you support each other. अब ये मत सोचना कि आप डिफरेंट क्लासेस में हो गए हो, डिफरेंट स्कूल्स में हो गए हो, but keep the friendship intact and this is going to help you throughout your life. Any other sharing from anyone? मैम Any मैं डन। एक ऐसा है, मैं कनक को भी थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उसने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। Okay, but she is not here. आपको शायद पता चल गया या आई डोंट नो कि आपको पता नहीं है कि No. हम गुरु माता कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें बहुत अच्छा गाइड करती है। Good. That is also very important that you should have someone who is always there to help you. Good. मैम हाँ, मैं गुरु माता वाली बात मुझे पता चल गई थी क्योंकि कल डेमो देने के टाइम आपके स्क्रीन पे आया था। यस मैम, आपको पता चल गई। मैम मैं आए। Okay. Anyone, any other sharing? मैम मैं आए। Sure, Dolly. Dolly, please share. यस मैम, इस टाइम मैं एम्पैथी फील कर रही हूँ कि जैसे अभी अनामिका और नाज़मीन को फील हो रहा है, वैसे ही मैंने अपने मैं जब सेशन लेती हूँ तो मुझे ऐसे अपना टाइम याद आ जाता है। तो ये लोग जिस तरीके से डर रहे हैं ना, तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है कि सही में ये क्या, ऐसा इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी फीलिंग आती है डर सी। फिर डर के बाद जीत मिल जाती है। डॉली, यू नो दिस इज कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कि हमारी सिखाई हुई बात कहीं पहुंची और किसी ने सीखी भी। यस मैम। गुड। और मतलब मैम इनका बोलने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव था, मतलब मैं इम्प्रेस हुई हूँ दोनों ने जैसे बोला। आपको एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन जो मुझे एक और अचीवमेंट लगती है आप स्टूडेंट्स की, वो है कि आप फीडबैक बहुत अच्छा देने लग गए हो। एंड दिस इज आल्सो कमेंडेबल, यू हैव वर्ड्स, यू हैव टू डिस्क्राइब ईच अदर, और उसमें आप सिर्फ तारीफ नहीं करते हो, आप इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप वो देते हो अपना feedback. So that is also very good. Anyone, any student would like to give more feedback? I just want to share that our principal ma'am is also with us. She's just joined, and unfortunately वो हमारा session तो नहीं attend कर पाई, but we are really glad कि वो हमारे साथ हैं, and it's really encouraging for us. और कोई बच्चा feedback देगा? मैम क्या है? Sure बेटा। मैम टॉपिक अच्छा था, प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, मुझे सबसे अच्छे इन लोगों के एग्जांपल्स लगे थे जो कि रिलेटेबल थे काफी ज्यादा। Yes, and
इनका जो रिस्पॉन्स था ना आफ्टर एवरीवन शेयरिंग, उसमें भी अपना इनपुट दे रहे थे, वो स्पॉन्टेनियस था, वो देखो उन्होंने तैयारी नहीं की थी, और वो जो इनपुट्स आ रहे थे ना उस टाइम जो उन्होंने इम्प्रोवाइज करके और अपना शेयरिंग की, वो बहुत कमेंडेबल था। तो आई थिंक दीज स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर एनी प्रेजेंटेशन, इनको बस टॉपिक मिल जाए उसके बाद ये अपनी तैयारी कर सकते हैं। परफेक्ट। एनीवन एल्स? ये किसमें आवाज नहीं आ रही, क्या दिक्कत है? एक में ये आवाज आ सुनीता मैम शायद कुछ कहना चाह रही है, मैम प्लीज बोलिए। नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह रही थी, मेरे दरअसल कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही अच्छा है। अच्छा आप कंटिन्यू करो। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नेक्स्ट संडे को हो सके तो टाइम 7 o'clock निकाल के हमारा एक बार पूरा सेशन अटेंड कीजिए। आई नो संडे हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी। बस ये होता है इस वाले हमारे सेक्शन का आप वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, इसको अब हमने रिकॉर्ड किया है, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। अब हर संडे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, तो मैंने जूम का वो ले लिया है पेड वाला, तो आई थिंक नाउ इट वुड बी इजी फॉर अ स्टूडेंट्स, जो नहीं भी अटेंड करते हो बाद में अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, and we are really grateful to each and everyone who takes out time to attend this session and give their contribution to it, and it's really encouraging. Thank you all, have a nice weekend. And for the one- student, आपके लिए एक information है कि कल छुट्टी है स्टूडेंट्स की,